Good morning, students. Today I am going to explain SST chapter 3 and the chapter name is the Northern Plains. In early classes in chapter 2 I am explained about the Northern Himalayas region, and in this chapter we will learn about the Northern Plains, the south part of the Himalayas. See, Northern Plains region occupy major part of the Indian part, as many states are lying in this region as Uttar Pradesh, Delhi, Haryana, Punjab, Bihar, West Bengal, Assam and Tripura. And these landforms are formed due to rivers which is coming from the Himalayas as Ganga, Brahmaputra, Satluj. These are the most important part of our physical area, and this also make our plain area fertile. These rivers bring numerous broken pieces of rock, sand and silt with them. With the help of this silt, our plains region begin fertilizer which is suitable for the crops and for the agriculture also. Okay, see, the area where are the river and its tributary is called basin, and many rivers are formed by these rivers that we call tributaries. Okay, and see, after that many basin you can see in your figure. Many basins are there as the Satluj basin. The Satluj basin lies in the western part of the Northern Plains. It means ये भारत के वेस्टर्न पार्ट में पश्चिमी घाट को दिखाता है. The Satluj river and tributaries flow down this basin, और उस सतलज नदी और इसकी जो इससे संबंधित नदियाँ होती हैं वो इसी बेसिन के थ्रू बाहर जाती हैं. द रिवर बीस इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर सतलज. जो बीस नदी है वो सतलज की एक बहुत अच्छी शाखा है. बोथ ऑफ द रिवर जॉइन द रिवर इंडस पाकिस्तान, एंड आफ्टर दैट दे बोथ वेंट टू west side and also join the Sindhu river which after flow to other country that name is Pakistan. It flow from the state of Punjab and Haryana, and Bhakra dam has been built across the river Satluj. भाखड़ा नागल बांध जो है वो इसी नदी पे बना हुआ है. नेक्स्ट इज द गंगा बेसिन. The Ganga basin lies between the Satluj in the west and the Brahmaputra in the east. यानी कि गंगा बेसिन वेस्ट साइड में सतलज नदी के और ईस्ट साइड में ब्रह्मपुत्र की नदी के बीच में एक बेसिन है. दिस बेसिन गेट्स वाटर फ्रॉम रिवर्स गंगा, और ये बेसिन किससे अपने पानी किससे पाती है? गंगा रिवर से. गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर्स, एंड यू विल नो दैट गंगा रिवर flow from the Gangotri glacier. Yamuna is the main tributary of the Ganga. You heard the name of the Yamuna, and it is the main tributary of the river Ganga. Ganga at Prayag near Allahabad. This place is called the Sangam. आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा, सरस्वती और यमुना का जो संगम स्थल है वो कहाँ है? प्रयागराज, which is lying in यूपी, उत्तर प्रदेश. द गंगा अलॉन्ग विद दिस ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द नॉर्थन प्लेन्स, और इन ट्रिब्यूटरीज के साथ गंगा नॉर्थन प्लेन्स में जाती है. द गंगा फ्लोज वेरी स्विफ्टली इन द माउंटेन एंड सेंटर द प्लेन्स एट हरिद्वार. ये गंगोत्री से निकल करके हरियाणा में हरिद्वार के थ्रू वो नॉर्थन प्लेन में प्रवेश करती है. Rivers like Ghagra, Gomti, Gandak and Kosi come from the Himalaya and join the Ganga. These many rivers also came from Haridwar and also made to Ganga. Rivers like Chambal, Betwa and Son join the Ganga from south. और जो दक्षिणी एरिया से जो नदियाँ निकलती हैं जैसे कि चंबल, बेटवा और सोन, ये भी आकर के गंगा नदी से मिलती है. द गंगा फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल. इन सारे राज्यों से होकर के गंगा नदी बहती है. बिहार एंड वेस्ट बंगाल द मेन स्प्लिट इनटू द मेन ब्रांचेस. वन ब्रांच इज कॉल्ड द हुगली. उसमें का एक ब्रांच होता है जो हुगली नदी है, जिसपे कि
हावड़ा पुल बना हुआ है जो कि कोलकाता में स्थित है। द सेकेंड बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज अंडरलाइन दिस सेंटेंस। द अदर ब्रांच इज कॉल्ड द पद्मा, और दूसरी जो पार्ट होती है उसको क्या कहते हैं हम, पद्मा। दैट फ्लो इनटू बांग्लादेश एंड देन जॉइन्स द रिवर ब्रह्मपुत्र, ये बांग्लादेश से निकलती है और फिर ब्रह्मपुत्र नदी को ज्वाइन करती है, यानी कि उससे मिलती है। हमारा तीसरा बेसिन है द ब्रह्मपुत्र बेसिन। द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी कि पूर्वी दिशा में जो भी नॉर्थर्न प्लेन से बने, जैसे असम, बिहार, इन झारखंड, इन सबों की जो यहाँ से होकर जो नदी बहती है वो कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन द तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड द, ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, वहाँ पे उसको क्या नाम दिया गया है, तांगगोम्पो। इट इंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, ये भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। उसके बाद ये असम होते हुए आती है। द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों एक साथ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और वहाँ पे एक बड़ा डेल्टा बनाती हैं जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। दिस इज द लॉन्गेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरे संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। दिस रिवर्स फ्लो थ्रू अ वेरी फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया, और जहाँ से भी ये नदियाँ निकलती हैं, वो जहाँ से होकर के बहती हैं, जहाँ से निकलती हैं, वो एरिया पूरी तरीके से फर्टाइल होता है, यानी कि कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। मेनी सिटीज हैव डेवलप्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, सम ऑफ देम आर इंडस्ट्रियल सिटीज, कई सारे शहर इसके किनारे बसे हुए हैं, जैसे गोमती नदी के किनारे गोमती नदी के किनारे लखनऊ, कानपुर गंगा नदी के किनारे के बसा हुआ है। ये सारी ये नदियाँ लोगों के रहने के लिए भी बहुत उपयोगी थी, इसलिए ज़्यादातर शहर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। ये हमारी क्लास ख़त्म हो रही है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, बाय।